students, how are you all? I hope all of you are fine and you are enjoying your studies at your home. And in previous class, whatever I have explained, you have completed your work in your notebook. Those students who are not having the textbook, please do everything in your fair notebook. And those students who are having the textbook, please fill in your textbook. Okay. And today the question what we are going to learn is let's try 9. You have to do this in your fair notebook. ये आपको अपनी fair notebook में ही करना है because there is no sufficient space to write the answer of these questions in the textbook. क्योंकि let's try 9 के जो questions अभी हम questions के जो answers हम लिखने वाले हैं इसकी जगह इतनी इस textbook में उन्होंने नहीं दी है तो हम क्या करेंगे we will write the whole thing in our fair notebook. Means only let's try 9 in our fair notebook. Got it, students? I hope you have understood what I am saying to you. Now let's start the question now. Keep concentration while I am explaining you. These are the grammatical points that you have to learn. It's very necessary for you. So let's start now. Insert the definite article wherever required and rewrite the sentences. Some sentences may not need any correction. See here what they have given. Insert the definite articles. I have already explained about the articles in your class, in your course book. Articles are of two types. One is definite article and another one is indefinite article. But here they have given you insert the definite article. Only you have to use here definite article. Definite article. Definite article is the. यहाँ पे definite article क्या है? The. So now wherever required and rewrite the sentences. Wherever required, जहाँ पे जरूरत हो केवल वहीं पे हमें शब्दों के सामने the का यूज करके हमें उस वाक्य को दोबारा से लिखना है. I have already left the space here. Okay, I will fill this now with the explanation. Some sentences may not need any correction. कुछ वाक्य ऐसे होंगे जिनमें किसी भी correction की जरूरत नहीं होगी. Okay, some questions will be some sentences will be correct. There will be no need of any definite article. कुछ वाक्य ऐसे होंगे जिनमें definite articles की जरूरत नहीं होगी तो जैसे है वैसे के वैसे ही लिखना है हमें या फिर हम वहाँ पे blank space छोड़ देंगे हाइफन लगा देंगे. Okay students, now let's see the question number 1. See here the first question is my sister speaks Chinese. Okay, the question number 1 is my sister speaks Chinese. यहाँ पे कहा जा रहा है कि मेरी बहन जो है वो क्या बोलती है Chinese बोलती है. So is it any necessary of the here? No. So we will not write anything here. We will not insert the definite article in the question 1. We have to leave like this or we can repeat the answer. हमें वापस वही वाक्य लिखना है क्योंकि यहाँ पे हमें कहीं पर भी डेफिनेट आर्टिकल की आवश्यकता ही नहीं है. ये वाक्य बिल्कुल सही है. स्पीक्स चाइनीज. सो चाइनीज का सी कैपिटल होगा बिकॉज दिस इज द नेम ऑफ अ लैंग्वेज and you properly know that I have already explained you in the omission of articles that we can't use the with the language. Okay, now next is Professor is late today, said one of the students. Professor ने कहा कि आज प्रोफेसर जो है वो लेट है ऐसा एक विद्यार्थी ने कहा. So what will be the answer? The professor, first we will put the inverted comma. Okay, the professor. Okay, we'll write here professor. P will be capital, small. The professor is late today, comma, close the inverted comma. Okay, the professor is late today, said one of the students. Now we have used already the at the starting. Said one of the students. I hope students you are understanding this. Next question number 3 is my daughter is learning to play violin in school. Okay, I already explained you that in front of any musical instrument, before the name of the musical instrument, we can use the definite article the here. So we will write my daughter is learning to play the violin in school.
So before the violin I have written the definite article the here. Next, I was born in USA. The question is I was born in USA. So we can write here the here. So I was born in the USA. Full stop. Okay. Next question is philosophy is the mother of all sciences. Philosophy is the mother of all sciences. So the statement, the sentence is whole correct now. So we'll write the same as it is. So philosophy is the mother of all sciences. Okay. Next question is call doctor please. Question is call doctor please. So now we can write here call the doctor, comma, please. You will put your exclamation mark. Okay students, in this way you have to use the article in some of the sentences. So now take the screenshot of this and you have to write this in your fair notebook. So please take the screenshot of the students. Yes students, now let's see here, let's try 10. Now I have not written here question here. I have written you what is a notice. Let's try 10 is about a notice. Let's try 10 में एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया गया है, उसे हमें कंप्लीट करना है. लेकिन मैं पहले आपको बता देती हूँ कि उसमें क्या करना है, what we have to do in that and in which way we have to do. Okay, so now the question, let's read the topic about what the question is. नोटिस. नोटिस के बारे में आप तो जानते ही हो. ए नोटिस इज रिटर्न टू गिव इंफॉर्मेशन. एक नोटिस क्यों दिया जाता है, एक नोटिस क्यों लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है क्योंकि ये हमें जानकारी देता है. ओके, नोटिस जैसे स्कूल से भी दिए जाते हैं, गवर्नमेंट से भी आते हैं. सो लेट अस सी हियर. इट कुड बी फ्रॉम अ स्कूल, फ्रॉम अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अ लॉयर और एनी अथॉरिटी. नोटिस जो है वो कोई भी दे सकता, कोई भी मतलब ऐसे वैसे हर कोई नहीं दे सकता. नोटिस कैन बी गिवन फ्रॉम अ स्कूल, स्कूल से नोटिस दिया जा सकता है. गवर्नमेंट जो सरकारी डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ से नोटिस दिया जा सकता है. लॉयर वकील नोटिस दे सकता है. कोई भी अथॉरिटी वाले क्या कर सकते हैं, नोटिस दे सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज अ नोटिस. अ नोटिस इज रिटन टू गिव इंफॉर्मेशन. एक नोटिस इसलिए दिया जाता है ताकि उन्हें जानकारी दी जाए. सो नाउ एलिमेंट्स ऑफ ए नोटिस, यानी जब भी हम नोटिस लिखें तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है. लेट अस सी नाउ दैट. थिंक अबाउट द फोकस ऑफ द नोटिस. जब हम नोटिस पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि उस पर सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे की जा रही है. ओके, नेक्स्ट सेकंड इज राइट द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एड्रेस इन कैपिटल लेटर्स. जब भी हम जैसे कि हम नोटिस स्टार्ट कर रहे हैं, द फर्स्ट मेन थिंग इज दैट वी विल थिंक एंड देन द मेन थिंग व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट. जब हमें लिखना स्टार्ट करना है तो वो ये है कि द राइट द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी वहाँ पे संस्था का नाम होगा, उस संस्था का नाम आपको लिखना है. एंड द एड्रेस इन कैपिटल लेटर्स, ये संस्था का नाम भी आपको पूरा कैपिटल, हर एक लेटर कैपिटल में होगा. और इवन द एड्रेस ऑल्सो. जैसे ही फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहाँ पे स्कूल से अगर नोटिस है तो हम पहले स्कूल का नाम यहाँ पे, कहीं से भी नोटिस है तो पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन से, स्कूल से है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से है, किस कहाँ से है, और जैसे कि अथॉरिटी की तरफ, तो सबसे पहले हम वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे. उसके नीचे की लाइन में ही हमें क्या करना है, कैपिटल लेटर में पूरा एड्रेस लिखना है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. देन आफ्टर दैट लीव ए लाइन. जैसे ही आप नाम और एड्रेस लिख देते हो उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ना है. लाइन छोड़ने के बाद लीव ए लाइन एंड राइट द डेट. एक लाइन छोड़ने के बाद आपको डेट लिखना है. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं चलो यहाँ पे आपको अपने स्कूल के नाम से देखती हूँ, IPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल. सीनियर का मैंने फुल फॉर्म नहीं लिखा है बच्चों. ओके, सीनियर सेकेंडरी स्कूल. एड्रेस हम लिख देते हैं बीकावास, जयपुर. ये हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने कैपिटल लेटर्स की जगह सारे स्मॉल लेटर्स यूज कर दिए बच्चों. यहाँ पे हमें क्या करना था, IPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल
ओके, बीकावास, बीकावास राजस्थान, हमने इतना एड्रेस लिखा है यहाँ पे राजस्थान। ओके, ये हो गया। अब हमें एक लाइन छोड़नी है, देन वी हैव टू राइट द डेट हियर। डेट हम आज की लिखते हैं, टुडेज डेट इज 26 जुलाई 2021, डेट हो गया। नेक्स्ट आफ्टर दैट पॉइंट 4 इज लीव अ लाइन एंड राइट द नोटिस इन कैपिटल लेटर। फिर से हमें लाइन छोड़नी है एक, आई लेफ्ट द लाइन, नाउ राइट द नोटिस, नोटिस लिखना है कैपिटल लेटर में, तो मैंने नोटिस लिख दिया। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दैट पॉइंट नंबर 5 इज राइट द हेडिंग बिलो नोटिस, द हेडिंग टेल्स व्हाट द नोटिस इज अबाउट। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, एक हेडिंग लिखनी है। हेडिंग का मतलब ये होता है कि किसके बारे में ये नोटिस आपको दिया जा रहा है, तो वो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। ठीक है, हेडिंग यहाँ पे लिखनी है। ये कैपिटल लेटर में नहीं होगा, केवल स्टार्टिंग का लेटर इसमें कैपिटल लिखा जाएगा। नेक्स्ट आफ्टर दैट इज, उसके बाद जैसे कि हम बॉडी ऑफ द, जब हम लेटर लिखते हैं, लेटर लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, बॉडी ऑफ द लेटर कहते हैं। यानी सब्जेक्ट लिखने के बाद हम पूरा जो विषय लिखते हैं, मतलब पूरी जो इंफॉर्मेशन उसमें लिखते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, बॉडी ऑफ द लेटर। तो यहाँ पे आपके आएगा पूरा बॉडी ऑफ द नोटिस, मीन्स पूरी कहानी आपको यहाँ पे लिखनी है। नेक्स्ट एट द लाइट राइट द डिटेल्स, आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द डिटेल्स। डिटेल्स का मतलब लगभग, मतलब ये जो बॉडी ऑफ द नोटिस मैंने कहा है, यहाँ पे तो हमने हेडिंग ले ली। पॉइंट नंबर 6 जो आ रहा है, बॉडी ऑफ द नोटिस है, यानी राइट द डिटेल्स, जिसके बाद जिस रीजनेबली जो नोटिस लिखा जा रहा है वो क्यों लिखा गया, किस रीजन है, पूरा इसमें हम लिखेंगे बॉडी ऑफ द नोटिस में। नेक्स्ट आफ्टर एट द लास्ट लीव ए लाइन, एक लाइन छोड़नी है आपको। लाइन छोड़ के आपको क्या करना है, सिग्नेचर इफ नेसेसरी, जरूरी हो तो आप सिग्नेचर लिख सकते हैं, वरना नहीं। नेम एंड डेजिग्नेशन, आपको क्या करना है, वहां पे अपना नाम और डेजिग्नेशन लिखना है एट द एंड ऑफ द नोटिस। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस। So now do one thing students, take the screenshot of this, wait a minute, take the screenshot of this students. You have to write this whole thing, whatever I have written on the board in your fair notebook, so take the screenshot of this. Yes students, now on this board screen you can see there, let's try 10, the question they have given you. The question is the conservator of forest Nagaon, Assam. Okay, the conservator of forest Nagaon, Assam is extremely concerned about the rise in rhino poaching in Kaziranga National Park. ये conservator of the forest होते हैं, यानी वहाँ पे जो जंगल की जो देखभाल करने के लिए जो रखे जाते हैं, वहाँ पे जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि जो राइनोज हैं उनका शिकार किया जा रहा है। तो ये दिन ब दिन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कहाँ, आसाम में नागौन काजीरंगा नेशनल पार्क में ये ऐसा होता ही जा रहा है। He issues a series of notices telling the public that poaching is illegal. वो बार बार क्या कर रहा है, नोटिस डाले जा रहा है। क्या नोटिस डाल रहा है, क्या नोटिस भेज रहा है कि राइनो का शिकार करना गैर कानूनी है, अपराध है ये, ऐसा वहाँ नोटिस भेजता ही रहता है या फिर नोटिस सामने लाया जाता है। ये उसके बाद आता है अंडर सेक्शन 141 ऑफ द इंडियन पैनल कोड, द किलिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ इज पनिशेबल ऑफेंस विद द इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years। अंडर सेक्शन 141 अंडर सेक्शन 141 के तहत इंडियन पैनल कोड ने ये कहा था कि जंगली जानवरों को मारना दंडनीय है, अपराध है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसको जेल में डाला जाता है और उसके साथ कब तक 7 सालों के लिए उसको कैदी बनाकर जेल में रखा जाता है। द कंजर्वेटर सेक्रेटरी इज अवेलेबल फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन। अन्य जानकारी के लिए यहाँ पे कंजर्वेटर का जो सेक्रेटरी है वो उपस्थित है। ही ऑल्सो इन्फॉर्म्स पीपल दैट अ रिवॉर्ड ऑफ 50,000 will be given to anyone informing the chief ranger काजीरंगा नेशनल पार्क about the poaching attempts। अगर कोई भी व्यक्ति शिकार करने वालों के बारे में अगर आकर वहां पर जानकारी देता है तो उनको इनाम दिया जाएगा, वो है पूरे 50,000
रुपए का. He tells people that the chief ranger will be making security vans available from 8 AM to 8 PM for people visiting the park. और जो भी वहाँ पे चीफ रेंजर आएंगे मतलब नेशनल काजीरंगा नेशनल पार्क देखने आते हैं उनके लिए चीफ रेंजर ने सिक्योरिटी वैन्स उपलब्ध करवाई है जो सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक उपलब्ध होंगी. Choose any of these points and make a notice on A4 sheet. Pin up your notice on the classroom notice board. Take turns reading the notice aloud. यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है आपको ये A4 शीट में ना आप अपनी नोटबुक में ये वर्क करोगे. क्या करना है आपको यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं इनमें से आपको जो अच्छा लगे वो पॉइंट निकाल के आपको माई टर्न 10 में नोटिस खुद बनाना है. आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड. हम क्या करेंगे पहले हम लिखेंगे द मेन थिंग इज हम सोचेंगे हमने सोच लिया हमें फोकस ऑफ द पॉइंट मिल चुका है तो पहले हम लिखेंगे द कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट नागौर आसाम. ओके नागौर आसाम. उसके बाद हम करेंगे नीचे से स्टार्ट करेंगे क्या करेंगे हम डेट लिखेंगे नोटिस. उसके बाद हम नीचे यहाँ पे हमें मेन चीज लिखनी है. क्या लिखना है क्या लिखोगे बच्चों मेन रीजन क्या लोगे आप. हम यहाँ पे एक काम करते हैं हम यहाँ पे जैसे ये ले लेते हैं कि द पब्लिक कोचिंग इज इलीगल. हम क्या करेंगे यहाँ पे कोचिंग इज इलीगल का नोटिस लिखते हैं. ठीक है जो नोटिस लिखा जाएगा वो कोचिंग यानी शिकार करना अपराध है ना गैर कानूनी है ऐसा हम नोटिस देते हैं. तो अब हम नीचे हमें क्या करना है इन द गवर्नमेंट अंडर no we have to write the killing of wildlife is punishable and offense with the imprisonment of 7 years according to the under section of 141 of the Indian Penal Code. Okay so if any he also informs people means even with this you have to write that those who will inform the chief ranger about the poaching of the wild animals they will reward them with the 50,000. बस हमें इतना लिखकर लास्ट में आपका सिग्नेचर ठीक है सिग्नेचर नेम डेजिग्नेशन करके वहाँ पे लिख के देना है. दिस इज योर नोटिस हाउ यू हैव टू प्रिपेयर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टूडेंट. सो ट्राई टू मेक अ नोटिस बाय योरसेल्फ. ओके हैव अ नाइस डे.